کو بتائیں کہ کون بنے گا آئی جی سندھ۔ آئی جی سندھ کی تبدیلی پر وفاق تاحال فیصلہ نہ کر سکا۔ سندھ حکومت کے احتجاج کے بعد بھی وفاق کی جانب سے خاموشی ہے۔ ذرائع کے مطابق نئے آئی جی کی تعیناتی میں رکاوٹ موجودہ آئی جی سندھ ہے۔ موجودہ آئی جی سندھ رفعت مختار عہدے پر برقرار رہنا چاہتے ہیں۔ سندھ حکومت نے 4 مارچ کو نئے آئی جی کے لیے 3 نام بھیجے تھے۔ بات کرنے کے لیے بیورو چیف فہیم صدیقی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فہیم، وفاق کی طرف سے بھی رکاوٹ ہے اور جو موجودہ آئی جی ہیں وہ بھی عہدے پر برقرار رہنا چاہتے ہیں۔ موجودہ آئی جی کے تعلقات اچھے ہیں وفاق سے؟ جی، بہت دلچسپ صورتحال ہوتی جا رہی ہے۔ ایک دفعہ پھر آئی جی سندھ کے عہدے کو لے کر سندھ میں ماضی میں بھی اس عہدے کے اوپر جو ہے وہ کافی تنازعات نے جنم لیا ہے، لیکن اس دفعہ پھر جو ہے ہمیں ایک اور تنازع جنم لیتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آئی جی سندھ جو موجودہ آئی جی سندھ ہے رفعت مختار، یہ پنجاب سے آئے تھے نگراں حکومت کے دور میں، یہاں پر آئی جی سندھ لگایا گیا تھا۔ یہ اب واپس نہیں جانا چاہتے، لیکن جو سندھ حکومت ہے وہ انہیں برقرار رکھنا نہیں چاہتی اور اس نے اپنے 3 افسران کے نام جو ہیں وہ بھیجے ہیں، اور یہ تینوں نام جو ہیں ان میں سب سے امپورٹنٹ نام جو ہے وہ غلام نبی میمن کا ہے، جو پہلے بھی آئی جی سندھ رہ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے جاوید عالم اوڈو ہیں جو کراچی پولیس چیف رہ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور نام جو ہے وہ منیر شیخ کا ہے، یہ بھی کراچی میں اہم عہدوں پر تعینات رہ چکے ہیں۔ یہ 3 نام جو ہے وہ سندھ حکومت کی جانب سے بھیجے گئے ہیں وفاق کو، لیکن وفاق نے اس کے اوپر خاموشی اختیار کر لی ہے۔ 21واں آج جو ہے 17واں دن ہے ان ناموں کو بھیجے ہوئے۔ 4 مارچ کو یہ نام بھیجے گئے تھے، آج 21 مارچ کو ہم اس سٹوری کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ ان 17 دنوں میں وفاق نے اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے، لیکن اگر ہم دوسری جانب دیکھتے ہیں تو اس کے علاوہ 2 اعتراضات جو ہیں سندھ حکومت کی جانب 2 چیزیں جو ہے سندھ حکومت کی جانب سے وفاق سے کہی گئی تھیں۔ ایک چیف سیکرٹری کا نام بھیجا گیا تھا، جو وزیر اعلیٰ سندھ کے بہنوئی ہیں حیدر شاہ صاحب، ان کو فوری طور پر چیف سیکرٹری تعینات کر دیا گیا تھا، جبکہ چیئرمین عرصہ کے معاملے کے اوپر بھی جو ہے وہ اعتراض کیا گیا تھا سندھ حکومت کی جانب سے۔ شہباز شریف صاحب نے جو ہے چیئرمین عرصہ کا نام جو ہے وہ واپس لے لیا تھا، ان کا نوٹیفیکیشن واپس لے لیا تھا، لیکن 17 دن گزر جانے کے بعد بھی وفاقی حکومت آئی جی سندھ کے نام جو انہیں بھیجے گئے ہیں ان میں سے کسی نام کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کر سکی ہے۔ اور اس کی جو بڑی وجہ سامنے آ رہی ہے، جو بتائی جا رہی ہے، ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں، وہ یہی ہے چونکہ رفعت مختار پنجاب میں بہت زیادہ سروسز کر چکی ہیں، ان کی پوری سروسز جو ہیں تقریباً پنجاب کی ہیں، اور پنجاب کی جو موجودہ گورنمنٹ ہے اور جو موجودہ مسلم لیگ کی قیادت ہے اس سے ان کے تعلقات جو ہیں وہ اچھے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ انہیں سندھ میں برقرار رہنے دیا جائے، وہ اس عہدے پر مستقل کام کرنا چاہتے ہیں، اور یہی بڑی وجہ ہے کہ اس وفاقی حکومت نے تاحال اس حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے۔ اس کے دوران جو ہے وہ جو آئی جی سندھ ہے انہوں نے ایک اور انیشیٹو لیا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اب تک 4 مارچ کو نام بھیجا گیا ہے کہ ان کو عہدے سے ہٹا دیا جائے اور کسی اور کو آئی جی لگا دیا جائے، جو نام بھیجے گئے ان میں سے کسی ایک کو، لیکن اس کے بعد سے 15 مارچ سے لے کر اب تک 6 دنوں میں آئی جی سندھ موجودہ آئی جی سندھ رفعت مختار 21 ایس ایس پیز کے تبادلے کر چکے ہیں سندھ میں، اور یہ تبادلے ہی بیسیکلی جو ہے وہ وجہ بنے ہیں اس وقت سندھ حکومت کی ناراضگی کا بھی، کیونکہ سندھ حکومت کی جانب سے گزشتہ روز جو صوبائی وزیر داخلہ ضیاء الانجار صاحب کی جانب سے جو بیان سامنے آیا تھا وہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ بہت زیادہ ناراض ہیں، اور ناراضگی کی جو بڑی وجہ ہے جو ذرائع بتاتے ہیں وہ یہی ہے کہ ایس ایس پیز لیول کے 21 ایس ایس پیز لیول کے اور بڑے اہم عہدے جو ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ تعیناتی اور تبادلے کیے گئے ہیں، اور یہ وہ بڑی وجہ ہے سندھ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ نئے آئی جی سندھ کو آنے کے بعد جو ہے ان تبادلوں کا اختیار ہونا چاہیے تھا، نہ کہ اس شخص کو جو اب جانے والا ہے، لیکن چونکہ رفعت مختار یہ سمجھتے ہیں کہ وہ نہیں جا رہا ہے ابھی اور وہ اس عہدے پر جو ہے وہ تعینات ہیں، وہ ابھی کنٹینیو کریں گے، اس لیے انہوں نے اتنی بڑی تعداد میں جو ہے وہ تبادلوں کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ آج بھی جو ہے ایک بڑا اہم تبادلہ کراچی کے ایس ایس پی کا جو ہے وہ کیا گیا ہے، ایسٹ کے ایس ایس پی کو تبدیل کیا گیا ہے، عرفان بہادر جو ایس ایس پی ایسٹ تھے ان کا تبادلہ کر کے یہاں پر ڈاکٹر فرخ کو جو ہے وہ ایس ایس پی ایسٹ لگایا گیا ہے۔ تو بڑی ہی اس وقت دلچسپ سچویشن پیدا ہو گئی ہے۔ اگر اس دلچسپ سچویشن کو اگر ہم جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو پیپلز پارٹی کے لیے اس وقت امپورٹنٹ یہی ہے کہ جو اہم عہدے ہیں اس پر ان کے نامزد کردہ لوگ یا ان کے لوگ جو ہیں وہ ہونے چاہیے۔ اس وقت جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ چیف سیکرٹری پیپلز پارٹی کے نام نے جو نام بھیجا تھا وہ لگ چکا ہے، لیکن آئی جی سندھ کے نام کے اوپر اب ایک واضح اختلاف نظر آ رہا ہے، اور اس کو جو اس وقت جو ایشو بنا رہی ہے پیپلز پارٹی اس کے لیے ان کا یہی کہنا ہے کہ صوبے میں امن و امان کی ابتر صورتحال ہے، اور اس ابتر صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وقت پر انتظامی فیصلے کیے جائیں۔ یہ انتظامی فیصلے جو وہ کرانا چاہتی ہے وہ وفاق سے کرانا چاہتی ہے، لیکن وفاق کی جانب سے تاحال اس کے اوپر خاموشی ہے اور آئی جی سندھ کی تبدیلی کا کوئی فیصلہ ابھی تک نہیں ہو سکا ہے۔ اچھا فہیم، تبادلوں کے حوالے سے آپ نے ابھی بات کی ہے تو محکمے میں بڑے پیمانے پر اکھاڑ پچھاڑ تو ہوئی ہے، ڈی آئی جی ویسٹ، ڈی آئی جی ٹریفک اور ڈی آئی جی
ड्राइविंग लाइसेंस को जो है वो चेंज किया गया है। ये बताइएगा कि एक तो रिफत मुख्तार राजा बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि वो अभी यहाँ पर मौजूद हैं, दूसरा विफाक के हवाले से बताइएगा ये भी तो हो सकता है कि जो 3 नाम सिंध हुकूमत की जानिब से दिए जा रहे हैं विफाक उस पर राजी ना हो। देखिए, जो 3 नाम भेजे जाते हैं कानून के मुताबिक उनमें से ही किसी एक नाम के ऊपर वफाक को जो इत्तेफाक करना होता है, और जो 3 नाम भेजे गए हैं उसमें वो तीनों नाम जो है वो बज़ाहिर अच्छे अफसरान के ही हैं। गुलाम नबी मेमन पहले भी, जैसे मैंने पहले बताया, कि वो IG सिंध के ओहदे पर तैनात रहे हैं, अच्छी शोहरत के हामिल हैं। इसके अलावा वो कराची पुलिस चीफ के ओहदे पर भी काम कर चुके हैं। जावेद आलम ओडो खुद वो भी कराची पुलिस चीफ के ओहदे पर काम कर चुके हैं। जावेद आलम ओडो उस वक्त कराची पुलिस चीफ थे जब रिफत मुख्तार साहब को जो है वो IG सिंध लगाया गया था, लेकिन चूंकि रिफत मुख्तार साहब और जावेद आलम ओडो जो है रिफत मुख्तार से सीनियर थे, तो इसकी वजह से उन समेत कई अफसरान को अपना चार्ज भी छोड़ना पड़ा था, क्योंकि रिफत मुख्तार साहब जिस बैच से हैं वो बैच जो है जावेद आलम ओडो के बैच से जो है वो जूनियर है। तो ये भी एक इशू जो है कुछ अर्से पहले रहा था। तो ये तो नहीं हो सकता कि रिफत मुख्तार IG सिंध रहें और कई अफसरान जो इस वक्त जो है जिनके पास ओहदे नहीं हैं वो जो है इसी तरह से बगैर ओहदों के काम करते रहे। तो सिंध हुकूमत ये समझती है कि रिफत मुख्तार के जाने से वो अफसरान जो इस वक्त फारिग हैं उन्हें भी जो है वो तैनातियाँ दी जा सकेंगी, और इसमें ज़ाहिर सबसे अहम तैनाती जो है वो जावेद आलम ओडो की है, गुलाम नबी मेमन की है, फरहत जुनेजो की, मुनीर शेख की है। एक नाम जो है वो फरहत जुनेजो का भी भेजा गया था, लेकिन फरहत जुनेजो को सिंध हुकूमत ने जो है चेयरमैन एंटी करप्शन लगा दिया, जिसके बाद उनका नाम तो हट गया था। उसके बाद मुनीर शेख का नाम भेजा गया। मुनीर शेख भी कराची में कई ओहदों पर SSPs के, DIGs के, एडिशनल IG के ओहदों पर जो है वो तैनात रहे हैं। तो इस वक्त सिचुएशन यही है कि वफाकी हुकूमत राजा रिफत मुख्तार को बरकरार रखना चाहती है, कंटिन्यू कराना चाहती है, वो खुद भी यही ख्वाहिश रखते हैं, और सिंध हुकूमत ये चाहती है कि उनके भेजे गए किसी एक नाम के ऊपर जो है वो इत्तेफाक हो जाए और वफाकी हुकूमत उसका नोटिफिकेशन बतौर IG सिंध जो है वो जारी कर दे। अच्छा फ़हीम, ये भी बताइएगा कि कितनी देर तक ये मामला लटकाया जा सकता है विफाक की जानिब से, और अगर कोई पेशरफ्त नहीं होती तो सिंध की तरफ से क्या जो है मामला अपनाया जाएगा, क्या लाहे अमल होगा अगला? देखिए, बहुत अहम सवाल है। इसमें बेसिकली कानून तो यही कहता है कि अगर वफाक जो है कोई फैसला नहीं करना चाहता इन 3 नामों के ऊपर, वो IG सिंध मौजूदा IG सिंध उन्हीं को बरकरार रखना चाहता है, तो उससे भी वो तहरीरी तौर पर ही आगाह करेगा, क्योंकि तहरीरी तौर पर नाम भेजे गए हैं। लेकिन इस वक्त जो पीपल्स पार्टी का स्टांस है वो भी बड़ा दिलचस्प है। पीपल्स पार्टी का जो स्टांस सामने आया है वो ये है कि इत्तेहादी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की जा रही है। जो ज़िया अंजार हैं, सूबाई वज़ीर दाखिला हैं, वो ये कहते हैं कि इत्तेहादी हुकूमत बनते वक्त जो मुआहदा हुआ था, जो इस वक्त जो है वफाक में मौजूद इत्तेहादी हैं उनके दरमियान एक तहरीरी मुआहदा हुआ था, और उसके तहत ये तय पाया था कि सिंध हुकूमत की जानिब से जो नाम जिन जिन ओहदों के लिए भेजे जाएंगे और जिन पर तैनाती वफाक ने करनी होती है वो वफाक वो तैनाती कर देगा। लेकिन ज़िया अंजार का ये कहना है कि IG सिंध के नाम का नोटिफिकेशन जारी ना करके उस मुआहदे की भी खिलाफ वर्जी की जा रही है जो इत्तेहादी जमातों के दरमियान हुआ है। तो मामला अब सिर्फ इंतजामी मामला अब सिर्फ और सिर्फ हुकूमतों के दरमियान नहीं है, नजर ये आ रहा है कि ये मामला जो है अब जमातों के दरमियान भी है। इस वक्त ये मामला जो है वो अगर हम देखें IG सिंध की तैनाती का मामला, ये सिर्फ वफाक और सिंध का मामला नहीं रहा है, ये इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग का मामला भी बन चुका है, क्योंकि दोनों जमातें जो हैं वो इस वक्त जो है वफाक में भी मौजूद हैं, और इन्हीं 2 जमातों के दरमियान जो है वो एक तहरीरी मुआहदा हुआ था जिसके तहत जो है वो IG सिंध की तब्दीली भी सिंध हुकूमत के मशवरे पर करना थी वफाक ने, जो उसने अभी तक नहीं की है। फ़हीम, जैसे आपने अभी खुद ही बात की है, यही सवाल मैं आपसे करने भी वाला था कि मामला जो है वो पार्टीज़ के दरमियान नज़र आ रहा है, तो आप क्या देख रहे हैं, कितनी दूर तक जा सकता है या मामला जो है वो रफा दफा हो जाएंगे? देखिए, ये मामला डेफिनेटली जो है वो सदर और वज़ीर आज़म के लेवल तक भी जा सकता है, और मुझे लगता है कि आसिफ अली जरदारी या बिलावल भुट्टो जरदारी और इसी तरह मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को जो है इसमें कहीं ना कहीं जो है इंटरफेयर करना पड़ेगा, और उनके इंटरफेयर के बाद ही जो है वो ये मामला जो है वो ये ऊँट जो है किसी करवट बैठेगा। ये तो कहा जा रहा है कि 48 घंटे, कल शाम तक कहा जा रहा था कि 48 घंटे में इस हवाले से कोई ना कोई चीज़ सामने आ जाएगी, और अगर हम इस वक्त बात कर रहे हैं तो 48 तो नहीं 36 घंटे बाकी रह गए। 36 घंटों में मुमकिन तौर पर यह है कि कोई ना कोई फैसला IG सिंध के हवाले से हो जाएगा। वो फैसला ये भी हो सकता है कि राजा रिफत मुख्तार जो हैं वो ओहदे पर कंटिन्यू करें और पीपल्स पार्टी की क़यादत को मना लिया जाए, सिंध हुकूमत को मना लिया जाए कि वो जो है राजा रिफत मुख्तार को कबूल कर ले, उनके साथ जो है अपनी सिंध हुकूमत चलाएं। लेकिन दूसरी जानिब ये भी मुमकिन है कि जो 3 नाम भेजे गए हैं उनमें से कोई किसी एक नाम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए। ये तीनों नाम जो है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से या सिंध हुकूमत की जानिब से भेजे गए हैं वो उनके अपने लोगों के नाम है, वो चाहते हैं कि इनमें से किसी को जो है वो IG सिंध मुकर्रर किया जाए।
बहुत शुक्रिया फ़हीम सिद्दीकी, ब्यूरो चीफ, आप हमारे साथ मौजूद थे। ट्रैफिक पुलिस रेवेन्यू जनरेशन का इदारा बन गया। 2.5 माह में शहरियों से 33 करोड़ कमा लिए। ट्रैफिक मैनेजमेंट के बजाय रेवेन्यू जनरेशन पर फोकस है। डीआईजी इकबाल दारा ने ट्रैफिक पुलिस को रेवेन्यू जनरेशन का इदारा बना दिया है। बात करेंगे शाहजेब हुसैन से। शाहजेब, रेवेन्यू तो जनरेट किया जा रहा है शहरियों से, लेकिन हालात जो ट्रैफिक के हैं वो नागुफ्ता में हैं। जी बिल्कुल, ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो है कमाओ और का दंगा चल रहा है। ईद से पहले ईदी बोलिंग का भी जो है ये सिलसिला कहा जा सकता है कि ट्रैफिक पुलिस अब जो है रेवेन्यू जनरेट करने लगी है। 2.5 माह में शहरियों से 33 करोड़ रुपए जो है कमा लिए हैं। ट्रैफिक मैनेजमेंट के बजाय रेवेन्यू जनरेशन पर जो फोकस है। साबिक डीआईजी इकबाल दारा ने ट्रैफिक पुलिस को रेवेन्यू जनरेशन का इदारा बनाया है और हर चालान अफसर को यौमिया 25 चालान करने की हिदायत की जाती है। चालान कम करने पर सेक्शन अफसर्स को शोकाज जारी किया जाता है। इस बात पर जराए कहते हैं कि ये तमाम तर जो है सूरत हाल पर जो सेक्शन अफसर हैं, आरके हैं, वो सब इस पर फोकस करते हैं और जगह जगह नाके लगाकर जो है ट्रैफिक चालान करते हैं। सिटी 21 ने इब्तिदाई 2.5 माह में जुर्मानों की जो तफसीलात है वो हासिल की हैं। ट्रैफिक पुलिस ने 16 मार्च तक 5,70,313 चालान किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 6.25 लाख चालान से 33 करोड़ 84 लाख की आमदनी हुई है। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है इब्तिदाई 2.5 माह में सबसे ज्यादा चालान मोटरसाइकिल सवारों के किए गए। मोटरसाइकिल सवारों के 2.5 माह में 3,16,070 चालान किए गए। गरीब की सवारी चलाने वाले से 3 करोड़ 17 लाख की आमदनी हुई। इब्तिदाई 2.5 माह में कार ड्राइवर्स को 46,145 चालान किए गए हैं। कार ड्राइवर्स के चालान से 3 करोड़ 17 लाख की आमदनी हुई। जबकि ट्रैफिक कवानीन की मुबैना खिलाफ वर्जी पर रक्षा ड्राइवर्स का चालान तीसरे नंबर पर रहा है। शहर में रक्षा ड्राइवर्स को 20,674 चालान किए गए। रिपोर्ट में बताया गया कि रक्षा ड्राइवर के चालान से 2 करोड़ 47 लाख की रिपोर्ट की आमदनी हुई। लेकिन उसके बावजूद अगर देखा जाए तो ट्रैफिक हादसा और इसी तरीके से ट्रैफिक की कवानीन को पासदारी को बढ़ाते हुए जब ट्रैफिक पुलिस सब कुछ जनरेट कर रही है तो उसके मुकाबिल उनको शहरियों के लिए कुछ अच्छा जो है करना चाहिए था। ट्रैफिक सिग्नल्स जो है सही करवा लेने चाहिए थे। ट्रैफिक की जो लाइनें होती हैं रोड्स पर लगी होती हैं, बिल बोर्ड लगे होते हैं, वो सही करवा देनी चाहिए। लेकिन ये बरअक्स हमने देखा कि सिर्फ जो पैसा आ रहा है वो रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, उसके बरअक्स शहरियों को कोई सहूलियात फराहम नहीं कर रहा। अगर बात की जाए तो शहरियों को जिस तरीके से देखा गया कि कोई उनके पास कोई सहूलियत फराहम नहीं की गई है। अच्छा शाहजेब, ये भी बताइएगा कि कोई हदफ मुकर्रर किया गया है चालान का? जी बिल्कुल, हदफ के हवाले से बात की जाए तो उनका टारगेट रहता है कि रोजाना की बुनियाद पर 20 से 25 चालान लाजमी करें। अगर नहीं करते तो शौकाज इनको जो है मिल जाता है। और अगर ये साबिक डीआईजी इकबाल दारा की जानिब से जो है इस बात का आपने मौक़िफ़ लिया है तो उनकी जानिब से इस बात का दावा किया गया है कि वो किसी को टास्क नहीं देते, बल्कि जो सेक्शन अफसर हैं वो अपनी ड्यूटी के फराइज़ पर अंजाम दे रहे होते हैं। लेकिन अच्छा शाहजेब, ये भी बताइएगा कि अगर जैसे शहरी पासदारी भी कर रहे हैं, अब बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है, हेलमेट का इस्तेमाल भी है, लाइसेंस भी है, उसके बावजूद कोई ना कोई वजह बना के जो है चालान करना है ताकि हदफ को पूरा किया जा सके। जी बिल्कुल, ज़राए का दावा यही है कि किसी न किसी तरीके से उनको अपना हदफ पूरा करना होता है और हर सेक्शन अफसर को रोजाना की बुनियाद पर 25,000 चालान करने का चार्ज दिया जाता है। चालान कम करने की सूरत में सेक्शन अफसर को शोकाज नोटिस जारी किया जाता है। जबकि साबिक डीआईजी साबिक इकबाल दारा ने जो मौक़िफ़ दिया है, जिनको गुज़िश्ता रोज़ उनको ओहदे से हटाया गया है, तो उनकी जानिब से कहा है कि ट्रैफिक पुलिस यौम चालान का कोई टारगेट सेट नहीं करती, खिलाफ वर्जी पर चालान करती। लेकिन साल 2024 के 2.5 माह में अगर देखा जाए तो 33 करोड़ की आमदनी यानी जो रेवेन्यू जनरेट किया है ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट ने, ये बहुत ज़्यादा है और शहरियों की जेब में बिला वजह का डाका डाला जा रहा है। एक तरफ देखा जाता है कि शहरी अगर कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा होता है तो उसको पहले समझाया जाता है। अब जो है धड़ल्ले से जो है चालान कर दिया जाता है और वजह भी नहीं बताई जाती है। और अगर चालान लेट हो जाए
जिस तरीके से महंगाई हो रही है बढ़ते हुए, हम देख रहे हैं कि लोग मुफ्त की जैसी जिंदगी गुजार रहे हैं। गरीब तबका जो है, जो मोटरसाइकिल सवार हजरात जो है, वो जो है इंतहाई अजियत से दुचार होते हैं। साबिक DIG दारा ने रेवेन्यू जनरेट करने के लिए चंद माह कबल ही एक नया रूल जारी किया गया था, जिसके नंबर मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट आगे नहीं लगी होगी, तो इसके खिलाफ शाहजेब आपने हमें अपडेट किया। कराची के ईस्ट जोन में जराइम में मुलविस पुलिस अफसरान और एहलकारों के खिलाफ एहतसाब का अमल जारी है। मजीद जान लेते हैं मेराज अख्तर से। कराची पुलिस में जो है वो खुद एहतसाबी का अमल भी जारी है। एहतसाब भी किया जा रहा है उन लोगों का जो कि रिश्वतखोरी में मुलविस हैं, आवाम को तंग करने में मुलविस हैं और अपने जो ताकत का और रैंक का जो है गलत फायदा उठाते हैं। उसके लिए एक बी कंपनी बनाई गई है। बी कंपनी है क्या, ये हम मालूम करेंगे। DIG गुलाम असफर मैसर हमारे साथ मौजूद हैं, DIG ईस्ट जोन। उनसे पूछेंगे बी कंपनी क्या है, किस तरह से यहाँ पर लोगों को रखा जाता है और कौन लोग होते हैं, कौन से एहलकार होते हैं जिनको यहाँ पर पोस्ट किया जाता है। बेसिकली ये एक टर्म है जो हम यूज करते हैं, एक मखसूस जो पुलिस एहलकार है उनको बाकी फोर्स से अलग करने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए एक बी कंपनी बनाई गई है, जो बैंड भी उसको कह सकते हैं आप, या उनको ब्लैक लिस्ट जो है कंपनी कह सकते हैं। उसमें ये भी हम देखते हैं कि हम कोई किसी के साथ कोई ज्यादती ना हो जाए। उसमें अगर कोई इस पे प्लीड करना चाहता है कि जी मेरे खिलाफ गलत एलिगेशन है, गलत चार्जेस हैं, तो उसकी फिर इंक्वायरी एक SP रैंक के ऑफिसर से हम कराते हैं। अगर वो उसमें गुनाहगार साबित नहीं होता तो हम फिर उसको फेयर चांस देते हैं और उसकी फिर दोबारा पोस्टिंग किसी और जगह कर देते हैं। गुलाम असफर मैसर साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने हमें बताया कि बी कंपनी क्या है, किस तरह काम करती है। उन लोगों की इस्लाह वहाँ पे की जाती है जो पुलिस एहलकार मुख्तलिफ जुराइम में या फिर ज्यादतियों में मुलविस होते हैं। तो उनका ये कहना है कि वहाँ पर उनको सुधारने के लिए जो है वक्त दिया जाता है ताकि वो दोबारा से आकर ड्यूटी ज्वाइन कर सकें, और जो लोग उसमें जो है बेगुनाह होते हैं उनको इंक्वायरी के बाद वहाँ से रिलीज भी कर दिया जाता है। जी। जमजमा स्ट्रीट पर ट्रैफिक हादसे में पुलिस कांस्टेबल कामरान जान बाहक हो गया। कम उम्र ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया। मजीद जानेंगे शाहरुख शाह से। जी बिल्कुल, देखिए जमजम स्ट्रीट पे आज एक ट्रैफिक हादसा हुआ जिसमें एक तेज़ रफ्तार गाड़ी ने एक पुलिस कांस्टेबल को जो है वो शहीद कर दिया। रोड क्रॉस कर रहा था, अपनी ड्यूटी पे जो है वो जा रहा था, जहाँ पे तेज़ रफ्तार गाड़ी ने जो है वो उसको हिट किया। सुबह के औकात जो है वो सुबह 8 बजे के करीब ये हादसा जो है वो रूनुमा हुआ। इस वक्त मैं क्लिफ्टन जो है वो थाने के अंदर मौजूद हूँ और क्लिफ्टन थाने के अंदर वो गाड़ी खड़ी हुई है जहाँ पे उस गाड़ी ने उस पुलिस एहलकार को, जिसकी शनाख्त कामरान के नाम से हुई, उसको हिट किया। आप देख सकते हैं कि मेरा कैमरामैन वाहिद जो है वो दिखाएं कि इस वक्त ये गाड़ी की कंडीशन है कि कितनी बुरी तरीके से इस गाड़ी को हिट किया गया उस जो है वो पुलिस कांस्टेबल को, और उसका सर जाके जो है वो विंड स्क्रीन से जो है वो लगा, जहाँ पे उसकी बताया जा रहा है कि तकरीबन जो है वो थोड़े से फासले के बाद गाड़ी जो है वो रुकी है और वहीं पे ऑन स्पॉट उसकी जो है वो डेथ हो गई। ये वो गाड़ी है, गाड़ी नंबर भी आप देख सकते हैं कि जो है वो लगा हुआ है, नंबर प्लेट लगी हुई है, और कम उम्र ड्राइवर जो है वो बताया जा रहा है जिसकी उम्र 17 साल के करीब है। उसका भी जो है वो बयान सामने आया है। इसका ये कहना है कि जो है वो पुलिस एहलकार जो है वो रोड क्रॉस कर रहा था और डिसबैलेंस जो है ना वो गाड़ी ओवर स्पीड थी, और एकदम से जब जो है वो पुलिस एहलकार आगे और जो है वो आगे होने रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था, उस वक्त ये हादसा जो है वो रूनुमा हुआ। नागहानी जो है उसने करार दिया है इस हादसे को, और उसके अलावा उसके जो पेरेंट्स हैं वो अब से कुछ देर कबल जो है वो थाने पहुँचे हैं और थाने में उस लॉकअप में जाके उससे जो है वो मुलाकात की है। मुलाकात करने के बाद थाने से उसके पेरेंट्स रवाना हो गए हैं, जहाँ पे वो जिना अस्पताल में जो शहीद कांस्टेबल है कामरान, उसके जो है वो लवाहिकीन से मिलेंगी, और जो है वो मुमकिन तौर पे SP जो है वो क्लिफ्टन से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि वाक़े का मुकदमा जो है वो अब से थोड़ी देर के बाद जो है वो दर्ज कर लिया जाएगा। कस्टम एजेंट्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी ने कहा है कि रमज़ान में अजनास की कीमतों के कम ना होने की एक वजह पोर्ट हैंडलिंग चार्जेस में इजाफा है। पोर्ट के चार्जेस और शिपिंग कंपनियों के लिए प्राइवेट बिल के जरिए कानून साजी की जाए। बात करेंगे अयाज राना से, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जहाँ हाल दिनों में हम देख रहे हैं कि बल्क कार्गो जो कि प्राइवेटाइज हुआ, जिसकी वजह से जो है अब देखा ये जा रहा है इम्पोर्ट बेस हमारी इकनॉमी है, और हम देख रहे हैं कि जो अजनास है वो जो बैरूनी मुल्क से आते हैं उसकी कीमतों में जो इजाफा हुआ है, उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि हमारी पोर्ट हैंडलिंग के चार्जेस बढ़ने की वजह से जो है वो दालों की कीमतें हों या दूसरी तमाम चीज़ें, अशिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। उसकी वजह क्या बनी उसको जानते हैं। हमारे साथ इस वक्त कस्टम एजेंट एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी महमूदुल हसन साहब मौजूद हैं। सर,
अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल तजावीज़ भेज रहे हैं हम लोग, और हम ये चाहते हैं कि हमारे मुल्क में भी वही कुछ होना चाहिए। सारी दुनिया ने तरक्की कर ली, हम तजर्बे ही करते रहते हैं। अभी हमने हाल ही में बल्क का जो टर्मिनल है वो प्राइवेटाइज़ किया, तो पिछले 2 महीने से हम तो रोज़ ट्रेडर से यही सुन रहे हैं, मर गए जी, हम बर्बाद हो गए जी, कास्ट ज़्यादा हो गई। उसकी वजह यह है कि हर बंदा प्राइवेट बिजनेस करता है, वो अपने रेट लगा लेता है। पहले 100 रुपये KPT का वारफेज था और वो हैंडलिंग खुद करते थे, तो वो कहते हैं जी बड़ा नॉमिनल से चार्जेस थे। अब टर्मिनल कहता है सारी चीज़ें मैं खुद करूँगा, तो उन्होंने रेट बढ़ा दिए हैं। और इस वक्त आपको पता है गंदम भी इंपोर्ट हो रही है, दालें सारी हमारी बल्क में इंपोर्ट होती हैं, और ज़रिए अजनास हम मुल्क होने के बावजूद सारा कुछ बाहर से इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट बेस्ड इकॉनमी है, तो वो इम्पैक्ट देखें रमज़ान में चीज़ें महंगी हैं। कीमतें जो खासकर हम देखते हैं, महंगाई की शरह जो तेज़ी से बढ़ रही है, उसका भी कंट्रोल जो है वो इंपोर्ट बेस होने की वजह से हमें कोई ना कोई ऐसी कानून साजी करनी होगी कि इंपोर्टर्स के लिए या पोर्ट हैंडलिंग के लिए या तमाम वो इदारे जो इसके अंदर अपना किरदार अदा करते हैं, उनके लिए कोई ना कोई कानून मौजूद हो। जी। लियाकताबाद की मार्केटों में बिजली की लोड शेडिंग से ताजिर परेशान हो गए हैं। मज़ीद जान लेते हैं वहाँ मौजूद काविश मेमन से। बिल्कुल देखें, शहर के मुख्तलिफ इलाकों की तरह तजारती मराकज़ में भी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लियाकताबाद सराफा मार्केट में। यहाँ पर भी घंटों की लोड शेडिंग की वजह से तजारती सरगर्मियाँ मुतासिर हो रही हैं। मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के प्रेसिडेंट हसीन कुरैशी मौजूद हैं, उनसे बात 12-1 बजे मार्केटें खुलती हैं और 5 बजे 6 बजे मार्केटें बंद हो जाती हैं, और इस दौरान कम से कम 3 घंटे की लोड शेडिंग है। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि कारोबार किस तरीके से किया जाए या कारीगर किस तरीके से, क्योंकि सारा सिस्टम जो है आपको पता है कि लाइट बिजली होगी तो मशीन चलेगी, बिजली होगी तो कारोबार होगा। तो ये एक परेशानी हमने पहले भी अपील की थी कि रमज़ान मुबारक में लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करार दिया जाए मार्केटों को। तो अभी भी हम अपील करते हैं, क्योंकि अब आने वाले जितने भी दिन आएंगे उसमें रश कस्टमर का बढ़ता चला जाएगा। तो अगर ये रात के औकात में भी लोड शेडिंग होगी और दिन में भी होगी तो एक सूरत हाल मज़ीद ख़राबी की तरफ जाएगी। मेरे साथ हसीन कुरैशी मौजूद थे। उनका कहना है कि ताजिर वक्त पर अदायगियाँ भी करते हैं बिल की, लेकिन उसके बावजूद लोड शेडिंग की जा रही है। उनका मुतालबा है कि रमज़ान मुबारक के मौके पर ताजिर बरादरी को रिलीफ फराहम किया जाए और जो तजारती मराकज़ है उसको लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करार दिया जाए। जी। ऑल पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने होलसेल ग्रोसर्स का 90 रुपये फ़ी किलो गंदम मिलने का दावा मुस्तरद कर दिया है। बात कर लेते हैं अशरफ खान से, अपडेट कीजिएगा। देखा जाए गंदम की कीमत जो है वो कम हुई है, साथ में फ्लोर मिल्स ने भी जो आटे की और फाइन आटे की कीमत नुमाया कम कर दी है। कितनी कमी हुई है जानते हैं जो ऑल पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन के जो चेयरमैन हैं चौधरी आमिर हमारे साथ मौजूद हैं। क्या देख रहे हैं, कीमतें कम हुई हैं, कुछ लोग कह रहे हैं अभी कीमतें ज्यादा कम नहीं हुई। जी बहुत शुक्रिया। आटे की कीमतें देखें ग्रेजुअली कम हो रही हैं, 2 दफ़ा कम हो चुकी हैं पिछले दिनों में। गंदम जैसे रशियन वीट आज तकरीबन 9,400 से 9,500 है मिल पहुँच, तो उसके हिसाब से आटा आजकल 113-14 रुपये किलो 2.5 नंबर मिल रहा है आपको, एक्समेल मिलेगा, और फाइन जो है 126 से 127 रुपये किलो। होलसेल ग्रोसर्स के जो नुमाइंदे हैं मैं समझता हूँ कि उनको इतनी नो हाव नहीं है हर चीज़ के बारे में। उनको एक बात करनी होती है, ठीक है, मीडिया पे आना होता है, मुझे लगता है उनका शौक है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मार्केट का एक सिस्टम होता है, डिमांड एंड सप्लाई होती है। जिस तरह से आप देख रहे हैं खुद वीट नीचे आती जा रही है, आटे के रेट नीचे आते जा रहे हैं। अगर देखा जाए मजमूई तौर पर जब आप एक्स मिल बताते हैं तो यहाँ फैक्ट्री से जो माल लेके जा रहे हैं तो 113 रुपये 114 रुपये जो है 2.5 नंबर आटा है, और जो फाइन आटा है जो बड़ा जैसे वो आपके उस पर जाता है रोटी पकाने में, इन सब में जो तंदूर होती है वो 127 रुपये किलो है। तो मार्केट में ये कितना फर्क होगा? लेकिन 2.5 नंबर आटा जैसे 113 अगर जाता है हमारे पास से, 114 में जाता है तो 120 रुपये तक आपको मिलना चाहिए, इतना वेरिएशन होता है। इसी तरह फाइन में भी 5, 7, 8 रुपये किलो वेरिएशन होता है, मार्केट में पहुंचता है, वहाँ से सेल होता है, रीसेल होता है, तो इतना वेरिएशन होता है इसमें। अच्छा अभी देखा जाए दरामदी गंदम के कितने जो है जहाज लगे हुए हैं और क्या गंदम की किल्लत होगी? साथ में हुकूमत सिंध ने कहा है कि अब जो है जो वीट की प्रोक्योरमेंट है वो खरीदारी कम करेंगे 14 लाख से 9 लाख, तो इसका क्या असरात होंगे? देखिए अभी 7 से 8 जहाज टोटल हैं जो लग जाएंगे और लगे हुए हैं। मार्च एंड तक ये प्रोसेस जो है कम्प्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह, हमारा जो वीट प्रोक्योरमेंट थी रशिया से। और जैसा कि गवर्नमेंट ने कहा गंदम नहीं खरीदेंगे, तो गवर्नमेंट का काम भी नहीं है गंदम खरीदना। हमारे सूबे में गंदम सरप्लस नहीं होती, आपको ये पता होना चाहिए। हमें एंड ऑफ द सीज़न या पंजाब से वीट खरीदनी पड़ती है या हमें TCP ने जो इंपोर्ट की होती है उससे खरीदनी पड़ती है। गवर्नमेंट जब इस टाइम पे वीट खरीदने आ जाती है सीज़न में तो मार्केट पे उसका मनफी असर पड़ता है।
जैसा कि आपने सुना, अहम जो है तजावीज़ भी दी हैं और पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन ने कहा है कि इस सीज़न में देखा जाए गंदम की कोई किल्लत नहीं होगी और कोई पैनिक में होकर उसकी ख़रीदारी ना की जाए, क्योंकि गवर्नमेंट अगर ख़रीदारी करती है तो यहाँ पे आटे की कीमत जो है सीज़न में महंगा हो जाता है। पिछले सीज़न में देखा जाए जो आटा बहुत महंगा था, मुसलसल इम्पोर्ट होने की वजह से सस्ता हो गया है, आवाम को सस्ता आटा मिल रहा है और अभी रमज़ान में भी मज़ीद कीमतें कम हो गई हैं। जी। सदर टाउन में डायरेक्टर ट्रेड लाइसेंस मुमताज़ डोमकी पर पीपल्स पार्टी की हिमायत याफ्ता पीपल्स लेबर यूनियन की जानिब से लगाए गए चेयरमैन सदर टाउन मंसूर शेख ने 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी है। बात कर लेते हैं जुनेद जावेद से। जुनेद, बताइएगा। देखिए जी, सिटी 21 न्यूज़ पर जो है वो डायरेक्टर ट्रेड लाइसेंस मुमताज़ डोमकी के ख़िलाफ़ खबरें नशर होने के बाद इंतज़ामिया मुतहर्रिक हुई थी और यकीन दिलाया था कि इंक्वायरी जो है वो कमेटी बनाई जाएगी। ताहम अब बाकायदा तौर पर इंक्वायरी कमेटी बना दी गई। इन कमेटियों में कौन कौन से अरकान शामिल हैं, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन मोहम्मद रईसी साहब। चेयरमैन साहब की सख्ती से हिदायत, ये जो कमेटी बनी है वो 15 दिन में कमेटी रिपोर्ट मुरतब करके चेयरमैन साहब को रिपोर्ट पेश करेगी और यहाँ बिल्कुल इस हवाले से ख़ासकर ज़ीरो टॉलरेंस है चेयरमैन साहब और एमसी साहब की तरफ से। अगर कोई भी शख्स या कोई भी ऑफिसर XYZ कहीं का भी हो तो अगर किसी चीज़ करप्शन में मुलव्वस पाया गया तो उसके ख़िलाफ़ तादीबी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और इसको फौरी तौर पर जो है ना इसकी रिपोर्ट मुरतब करके चेयरमैन साहब जो है ना सिंध लोकल गवर्नमेंट बोर्ड में भिजवाएंगे। तो ज़ाहिर है अगर जिसका भी कसूर होगा, या किसी मुलाजिम का हो या किसी ऑफिसर का भी हो, इस सिर्फ एक तरफ़ा नहीं है कि मुलाजमीन के भी हवाले से हमने जो कमेटी जो है ना तश्कील दी है उनकी भी इंक्वायरियाँ चल रही है। तो ज़ाहिर है जो भी कसूरवार होगा तो इसके खिलाफ़ कार्रवाई जी बिल्कुल, जो भी कसूरवार होगा उसके खिलाफ़ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। 3 रुकनी कमेटी है जो कि 15 रोज़ के अंदर अपनी रिपोर्ट जो है वो चेयरमैन सदर टाउन को पेश करेगी। चेयरमैन सदर टाउन ने जो है मुमताज़ डोमकी को हटाने के लिए लोकल गवर्नमेंट को सिफारिश की थी, ताहम उन्होंने स्टे ऑर्डर हासिल किया था जिसके बाद से अब तक वो अपने ओहदे पर विराजमान हैं। जी। हैदरी में नगीना स्क्वायर के रहायशी सीवरेज के नाक़िस निज़ाम से परेशान हैं। कहते हैं 4 माह से गटर का पानी सड़क पर जमा है। बात कर लेते हैं मीर केरियो से। जी बिल्कुल, शहर कायद में जगह जगह सीवरेज का निज़ाम दरम बरम है। सीवरेज का निज़ाम दरम बरम होने की वजह से जो शहरी हैं, इलाका मकीन हैं, उनको कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस वक्त जहाँ हमें मौजूद है ये कराची के हैदरी का इलाका। हैदरी में ये जो है नगीना स्क्वायर कहलाता है, जहाँ पर कई दिनों से जो है गटर का पानी सड़क पर आ गया है। सीवरेज का निज़ाम दरम बरम है जिसकी वजह से इलाका मकीन काफ़ी मुतासर है। सर बताइएगा कि क्या मसला है पानी का? जी सर, नंबर मिलाया जा रहा है मगर वो नंबर जो कंप्लेन नंबर दिया हुआ है वाटर बोर्ड और सीवरेज के लिए वो अभी बिल भर के आया हूँ। ये पूरा तकरीबन काफी अरसे से ये मसला चल रहा है। वह अली दौलत वाले साइड पे, मिडवे वाले साइड पे और ये नगीना वाले साइड पे जो है ना तकरीबन गटर भरे हुए। रमजान का महीना है, लोग मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए भी नहीं जा सकते भाई। क्या मुतालबा करेंगे मकामी इंतजाम ऐसे वाटर बोर्ड सीवरेज से? इसको बोल रहा हूँ कि गटर लाइन जो है वो साफ करके इसकी सही पाइप लाइनिंग जो है वो सीवरेज की लाइन डलवा दी जाए और इसकी सफाई कराई जाए। भाई पैसे ले रहे हैं मगर बिल जमा हो रहा है, आवाम वैसी महंगाई की शिकार है और इधर से ये मसला भी चल रहा है। इसकी वजह से हमारे सामने वो ठल है, वो कस्टमर जो है इसकी वजह से काफी टूट फूट का शिकार है भाई, आ नहीं रहे भाई। जी बिल्कुल, आपने शहरियों की बातें सुनी। उनका कहना था कि ये जो सीवरेज का मसला है इसको हल किया जाए ताकि उनका जो कारोबार मुतासर हो रहा है, जो रोजमर्रा की जिंदगी में दीगर मसाइल है उनसे भी छुटकारा पाया जा सके। जी। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की में हसास इदारे के जाली अफसरान की गिरफ्तारी के केस की समाअत हुई है। मजीद जान लेते हैं जवाद आसिफ से। जवाद बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें हसास इदारे के जाली अफसरान की गिरफ्तारी का मामला है जिसकी समाअत जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में हुई। पुलिस ने गिरफ्तार 2 मुलजिमान को अदालत में पेश किया है। मुलजिमान में अरसलान और अब्दुल रहीम शामिल हैं। तफ्तीशी अफसर की जानिब से मुलजिम के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। अदालत ने 23 मार्च तक दोनों मुलजिमान को जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले करते हुए आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर से पेशरफ रिपोर्ट भी तलब कर ली है। पुलिस के मुताबिक जो है मुलजिम अरसलान और अब्दुल रहीम जाली अफसर बनकर कॉल्स करते थे। ये ताजिरों को भी कॉल्स करते थे, उनसे भत्ता भी तलब करते थे और कई ताजिरों से ये भत्ता वसूल भी कर चुके थे। इन दोनों मुलजिमान के खिलाफ जो है मुकदमा फखरुल हुदा नामी कारोबारी शख्स ने जो है वो दर्ज करवाया है, जिसमें मुकदमे का मतन यही बताया गया है कि इसे भी जो है वो पैसों के लिए हरासा किया गया था। इन मुलजिम ने जो है एक मुलजिम अरसलान ने हसास इदारे का जो है वो कार्ड भी बना रखा था। वाक़े का मुकदमा जो थाना अवामी कॉलोनी में दर्ज किया गया था। जी
اسسٹنٹ کمشنر سب ڈویژن گلبرگ حسان ظفر کی فیڈرل بی ایریا میں گراں فروشوں کے خلاف کارروائی۔ دستگیر عزیز آباد کریم آباد میں 3 دکانیں سیل کر دی گئیں۔ مزید بتائیں گے رضوان احمد۔ جی بالکل، ماہ سیام میں شہریوں کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے کمشنر کراچی کی ہدایت پر تابڑ توڑ کارروائیاں جاری ہیں ضلعی افسران کی۔ میں رپورٹ کر رہا ہوں آپ کو ڈسٹرکٹ سینٹرل کے سب ڈویژن گلبرگ سے، جہاں اسسٹنٹ کمشنر حسان ظفر کی جانب سے دستگیر عزیز آباد اور کریم آباد کے مختلف علاقوں میں کارروائی کی گئی ہے۔ بتائیے گا سر، اب تک کتنا فائن کیا آپ نے، کتنی دکانیں سیل کی ہیں، گرفتاریوں کی پوزیشن کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ابھی تک ہم نے 50,000 تک کے قریب کے جرمانے کر لیے ہیں۔ ابھی ہماری پرائس چیکنگ ڈرائیو جاری ہے۔ یہ انشاءاللہ ہم روزانہ کنڈکٹ کر رہے ہیں، ڈیلی بیسس پہ مختلف مارکیٹس کا وزٹ کر رہے ہیں، اراؤنڈ 3 to 5، اور جہاں جہاں بھی گراں فروشی کی کمپلینٹس آ رہی ہیں اس کو فل فور جرمانے کر رہے ہیں اور دکانیں بھی سیل کر رہے ہیں۔ ملٹیپل کارروائی آج آپ نے کی ہے، بالکل نظر بھی آیا ہم کو، لیکن اس میں ایک چیز کی خامی دکھائی دیتی ہے کہ جو کوالٹی ہے، کوالٹی کنٹرول کے حوالے سے جو ہے وہ کوئی کام ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا، وہ کیا معاملہ ہے؟ جی انشاءاللہ کل ہمارا پلان ہے کہ ہم نے سندھ فوڈ اتھارٹی کی ٹیمز کو الائن کیا ہوا ہے، ان کے ساتھ ہم جو ہے نا دودھ کے اوپر خاص طور پہ کارروائی کریں گے، کیونکہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جو ہے نا شاید اس میں دودھ کے اندر کوالٹی کے اندر کوئی تھوڑا سا نقصان موجود ہے۔ تو کل انشاءاللہ جو ہماری ٹیم جب 3 سے 5 نکلے گی تو ہمارے ساتھ سندھ فوڈ اتھارٹی کے بھی لوگ ہوں گے، ہم اپنے گوشت کو بھی، ان کا جو بھی گوشت بک رہا ہے اس کی بھی کوالٹی چیک کریں گے، اور اس کے علاوہ دودھ وغیرہ کی بھی چیک کریں گے۔ اس میں جو ہمارے کنزیومرز ہیں، جو بھی لوگ ہیں جو خریداری کرنے آتے ہیں، ان کو بھی میں ریکویسٹ یہی کروں گا کہ اگر کوئی نہیں بیچے تو ضرور کمپلین کریں، اور ان کو بلکہ کہیں آپ خود ڈیمانڈ کریں کہ بھائی ریٹ لسٹ کے مطابق اگر یہ ریٹ ہے تو اسی ریٹ پہ ہی جو ہے نا وہ سامان دیا جائے۔ بالکل، حسان ظفر یہ کہہ رہے تھے کہ انتظامیہ، ضلع انتظامیہ اپنا کام کر رہی ہے، عوام کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ گراں فروشی کے خلاف انتظامیہ کو آگاہ کریں تاکہ بروقت کارروائی عمل میں لائی جا سکے۔ جی، اور شہر قائد کا موسم اس وقت گرم ہے، موجودہ درجہ حرارت 35 ڈگری سینٹی گریڈ محسوس کیا جا رہا ہے۔ مزید جان لیتے ہیں رابع اشرف سے۔ جی بالکل، دیکھیں شہر قائد کا موسم جو ہے اس وقت خاصے گرم ہے، اور اگر درجہ حرارت کی بات کی جائے تو 35 ڈگری تک جو ہے وہ درجہ حرارت ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جبکہ جو محسوس کیا جا رہا ہے وہ 36 ڈگری تک درجہ حرارت جو ہے وہ شہر قائد میں محسوس کیا جا رہا ہے۔ گرمی جو ہے وہ خاصا زیادہ ہو گئی کہ صبح کے اوقات میں ہم نے دیکھا تھا کہ موسم جو ہے کافی زیادہ خوشگوار تھا، اور صبح جو ہے وہ سورج کی آنکھ مچولی جاری تھی، مگر اب جو ہے وہ سورج جیسا ونیزے پر ہے اور گرمی کی شدت میں کافی زیادہ اضافہ ہو گیا ہے۔ ہوا بھی جو ہے چل رہی ہیں، ہوائیں تو چل رہی ہیں، مگر اس کی جو رفتار ہے وہ خاصے کم ہے۔ شمال مشرق سمت سے چلنے والی جو ہوائیں ان کی رفتار 24 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے جو ہے وہ ہوائیں چل رہی ہیں، جبکہ ہوا میں جو نمی کا تناسب ہے وہ 21% ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح اگر آلودگی کی بات کی جائے تو شہر قائد میں آلودگی جو ہے وہ فی الوقت برقرار ہی ہے۔ پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان کے آلودہ ترین شہروں میں کراچی جو ہے وہ اس وقت 6 نمبر پر براجمان ہے، جبکہ دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی بات کی جائے تو دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں کراچی جو ہے وہ اس وقت 29ویں نمبر پر آ گیا ہے، جبکہ ہوا میں جو آلودگی کے ذرات ہیں ان کی تعداد 83 پارٹیکولیٹ میٹرز ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ جی